Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography and what is our topic today? Green Revolution. The Green Revolution is the most important. The 8 year between to the combination of the third 5 year and the fourth 5 year plan 1961 to 69 were the year of great significance for India agriculture. There is Indian agriculture. During this period, a new style of the agriculture production was introduced for first in 1960 to 61 as a pilot project in some district of Punjab and was the sequentially is extended to other district of country. And this core of that there is a struggle was the use of high yield variety means HYV of seed, application of a chemical fertilizer and extension of the adequate as assumed to the irrigation. It also made it is imperative to be use of pesticide and insecticide and improve to the agriculture implement to be enhanced to the agriculture productivity. It has also become estimated to make a provision of cheap credit, storage and marketing facility, and crop is a preparations. This is important here. And also the measuring and support price of agriculture product. This is a green revolution here part. Due to this is measuring food grain or productions or surge in the Indian and country become a self-sufficient in the food grain. This achievement of India as a farmer is called Green Revolution. Due to this measuring of food grain production, so in India and country become self-sufficient in the food grain. This achievement of India as a farmer is called Green Revolution. The term of Green Revolution was used first in 1968 by Dr. William Gadd of the USA. The important here. The Green Revolution in the India has been successful mainly in Punjab, Haryana, and West Uttar Pradesh because this region has an advantage assured of irrigation, adequate supply of fertilizer, HYV seeds, and modern agriculture implement of subsidies aid. The majority of farmers and the area in there is a country have not been benefited by AIDS, resulting in the ever increasing of inequalities in their agriculture and rural development in the country due to increased application of chemical fertilizer and over irrigation and soil in the area of the green revolution has been to the degraded in the form of salinity and water logging. The green revolution as a package has led to serious environment disturbances as area of the success. Exclusive of concentration of chemical fertilizer and pesticides are contaminated is the steam and the groundwater with a serious health hazard for their people. Fish are not be found in the paddy field anymore and the water table has a decreasing drastically in this area. The green revolution mean a rapidly increase of farm production per unit area through their application of high wearing seeds, chemical fertilizer, assured and aquatic irrigation. There is the most important. अब हमारे समक्ष जो आया है हरित क्रांति। देखिए हरित क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, तो इसको आसानी और सुचारू रूप से करना बहुत ज़रूरी है। देखिए हरित क्रांति अगर जनरली देखें तो देखा जाए तो इसका यही मतलब होता है कृषि उत्पादन में वृद्धि, लेकिन देखा जाए इसके बारे में विस्तार पर जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। हरित क्रांति की बात करें तो कहते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरंभ होने से लेकर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के 8 साल यानी 1961 से 69 तक यानी जो है 69 तक भारतीय कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे और इस अवधि में कृषि उत्पादन की नई रणनीतियों को जो है 1960 से 61 में एक प्रौद्योगिक एवं पथ प्रदर्शन योजना के आधार पर पंजाब को कुछ जिलों में क्रियान्वित किया गया और इस योजना के बाद में देश के अन्य जिलों में भी लागू किया गया। इस रणनीति के अंतर्गत जो है अधिक उत्पादन वाले उन्नत प्रकार के बीजों का उपयोग करना, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के साथ साथ पर्याप्त एवं सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था करना काफ़ी जरूरी था। उसके पश्चात देखा जाए तो हरित क्रांति के अंतर्गत इसके बाद अनिवार्य रूप से जो है कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना, उन्नत कृषि उपकरणों का उपयोग, इन सभी को जो है शामिल करने से कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है और कृषि उपज एक उत्पादन
और दोनों के लिए जो है सरल एवं सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध कराना भी जरूरी हो जाता है। कहते हैं और इसके द्वारा जो है ऋण भी सरकार के द्वारा उपलब्ध किया जाता है। विपणन की सुविधाएं तथा कृषि उपज भंडारण सुविधाएं, खेत खलिहान में फसलों की सुरक्षा के उपाय उपलब्ध कराना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और अंत में कृषि उत्पादनों के लिए जो है सहायता मूल्य सुनिश्चित करना शामिल होता है। और इन सभी पहलुओं पर जो है समग्र एवं एकीकृत जो है ध्यान देकर जो प्रयास करने में भारत में कृषि हरित क्रांति के फलस्वरूप जो है अनाज उत्पादन में उछाल तो आया ही है, साथ में देश में खाद्य पदार्थों की आत्मनिर्भर भी हो गया है। तो कहते हैं हरित क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण था जो भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। भारतीय किसानों को कृषि उत्पादन में इस प्रकार से प्राप्त उपलब्धियों को श्रृंखला को हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। और हरित क्रांति शब्द को सर्वप्रथम जो है 1968 में डॉक्टर विलियम्स गेट ने जो यूएसए के प्रयोग किया था, उसने जो है इसका नाम हरित क्रांति का नाम दिया था। हरित क्रांति एक सफल अभियान के रूप में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सिद्ध हुआ, क्योंकि इन राज्यों में शासकीय आर्थिक सहायता द्वारा कम दरों में उन्नत बीज और पर्याप्त रासायनिक खाद जो है सुनिश्चित सिंचाई सुविधाएं और आधुनिक कृषि उपकरण इत्यादि उपलब्ध कराए गए थे। परंतु देश के अधिकांश भागों में किसानों की बहुत बड़ी संख्या हरित क्रांति से लाभान्वित नहीं हो सकी, क्योंकि ये कुछ ही क्षेत्रों में जो है लागू हुआ और कुछ ही क्षेत्र में ये लाभान्वित हुए। परिणाम स्वरूप हमेशा से बढ़ती आ रही कृषि विकास एवं ग्रामीण विकास की असमानताएं बढ़ गई। हरित क्रांति के जो है दरमियान जो है कृषकों द्वारा अधिक कृषि उत्पादन के लालच में जरूरत से ज़्यादा जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, खेतों में फसलों को अधिक और अनियंत्रित सिंचाई आदि अव्यवहारिक कारणों के खेत की जो है मिट्टियों में विकृति आ गई। हरित क्रांति की सफलता वाले देशों में जो है पर्यावरणीय विघटन को भी बढ़ावा मिला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था कि इसके कारण जो है सफलता वाले क्षेत्रों में पर्यावरण विघटन को भी काफ़ी बढ़ावा मिला। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाइयों की जो है घुलनशील मात्रा का पानी के विभिन्न सतही क्षेत्रों में तथा भूमि जल में सांद्रता बढ़ गई और स्थानीय जल जीवन पर जो है स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभाव भी बढ़ गई। जिन धान के खेतों में पहले मछली मिला करती थी, अब कीटनाशक दवाइयों के अभाव से अब वो पूरी तरह समाप्त हो गई। तो देखिए कहते हैं ये भी बहुत दुष्प्रभाव हुआ। हरित क्रांति तो देश में आया, लेकिन कहते हैं इसके कारण बहुत ही जो है कृषि पर जो है बुरा प्रभाव देखने को मिला। कहते हैं पुराने समय में अगर देखा जाए तो सब चीज़ों का जो था एक अलग ही स्वाद होता था, लेकिन आज के समय में अगर अब जो भी चीज़ खा लीजिए उसमें कोई स्वाद नहीं रह गया। रीजन ये है कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि तो हुई, लेकिन इसका कारण जो है उनके टेस्टों में काफ़ी पड़ा। और कहते हैं इतने केमिकल का उपयोग करने से जो है जो वास्तविक होना चाहिए वो चीज़ खत्म हो गई। हरित क्रांति का अर्थ कृषि और प्रभावित तकनीक जैसे कि अधिक उत्पादन बीजों का उपयोग करना, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, सुनिश्चित एवं पर्याप्त सिंचाई द्वारा तीव्रता से प्रति इकाई उत्पादन बढ़ाना सभी सम्मिलित थे। लेकिन कहते हैं जहां हरित क्रांति की बहुत लाभ हुआ वहां पर बहुत कुछ जो है हानि भी देखने को मिला।